Last day we have talked about asexual reproduction. हमने asexual reproduction में क्या देखा? उसमें सिंगल होते हैं गैमेट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो. If you can say that you will come in NCERT book, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 8.3 में बताया जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड. बुल्स अलोन कैनॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स. क्या बुल्स without any help can get it? No. Right? You can see nor can hens alone produce new chicks. Right? Truly required sexual reproduction. Why the sexual mode of reproduction? मैं एक बात आपको बता दूं. I'm telling one thing that just clear it. मैंने सबसे पहले बायोलॉजी में क्या कहा भाई? मैंने बायोलॉजी में कहा है या किसी भी अदर सब्जेक्ट में कहा है कि भैया आप ले लेना एक हाईलाइटर अंडरलाइन करने के लिए. पहले मैं बताया था. यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है. द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए as well as on the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organism. Every individual organism cannot be protected by variation, but in a population, variation are useful for ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब वो डीएनए की कॉपी जब मैच नहीं कर पाती है ना डीएनए न्यूक्लिक एसिड, तो जब ये नहीं हो पाए तो डाई हो जाता है, डेथ. राइट. Each new variation is made in a DNA copy that already has variations. Accumulation from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation. Since all of these variations are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effect. Combining variation from one or more individuals would thus react new combination of variants. Each combination would be novel since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction. Such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction, but this creates a major difficulty. अब देखते हैं डिफिकल्टी क्या है डीएनए में. In each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals. Then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think of for solving this difficulty? We have seen earlier that an organism becomes more complex. The specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned about in the special ligaments of cells. Right? Special lineage of the cells is specialized organ in which
only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division. ये सेल डिविजन होता है, आप पढ़े हो ना, माइटोसिस मियोसिस, हाँ ठीक है, 9th में कुछ होता है डीएनए कन्वर्सन। अब है भाई कि इसको आप बायोलॉजी के यहाँ पर पढ़ोगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। टू गैमेट्स डिफरेंट कैसे हुए हैं? वन फ्रॉम वन, वन फ्रॉम सेकेंड, गैमेट टू होते हैं। अंडरलाइन बढ़िया से कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम देखेंगे फ्लावर में, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, गौर समझिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू। यहाँ पर देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आप पहले पढ़ चुके हो ना, क्लास 9th में आई होप की होगा। सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल। यहाँ पर एक फूल दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। यू कैन से हियर सेपल्स। डायग्राम को बनाना भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं। सेपल्स है, पेटल्स है, एंथर है, फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट जो है ना, ये होते हैं स्टेमेंस। सिग्मा है आपका, स्टाइल है, ओवरी है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। डायग्राम को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री मीन्स, सॉरी बायोलॉजी मीन्स डायग्राम, राइट। नाउ यहां बता रहा है कि भाई व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल एंड सेपल सर्व। पेटल और सेपल क्या करते हैं भाई? पेटल और सेपल क्या करते हैं, क्या फंक्शन है? द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स हो गया सिंगल सेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल मतलब बाई, ज्यादा। तो इसमें कौन कौन है यूनिसेक्सुअल? पपाया है, वाटरमेलोन है। When it contains either stamens or pistil, or bisexual hibiscus or mustard. When it contains both stamen and pistil, stamen is the male reproductive part. याद रखिएगा stamen, इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, याद रहिएगा। stamen क्या है? मेल। और that produce pollen grains that are yellowish in color। वो पोलन ग्रेन बनाता है जिसका रंग येलो होता है। आगे आप बढ़ोगे तो पाओगे कि powder open stick out of the pistil is present in the center of flower। pistil जो है center of flower होता है, and pistil is present in the center of flower, and in the female reproductive part it is made of 3 parts। ये 3 पार्ट में बढ़ता है। the swollen bottom part is the ovary। पहला है ovary, middle elongated part in the style, and the terminal part which may be sticky in the stigma। आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आपके अगले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा दिखाया गया है, मैं इस फिगर को समझाऊंगा। लेट मी फर्स्ट टच दिस। द ओवरी कंटेंट ओव्यूल्स। ओवरी है तो भाई सिंपल सी बात है कि ओव्यूल्स को कंटेंट तो करेगा ही, राइट। एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। द मेल जर्म सेल produced by pollen grains fuses with the female gametes present in the ovule। This fusion of the germ cells of fertilization gives us the zygote। जब ये फर्टिलाइज करता है ना, दोनों मिक्स होता है ना, तो क्या बनाता है? जाइगोट, राइट। मिक्स आउट होने के बाद बनेगा भाई जाइगोट। आगे बढ़िए। which is capable of growing into a new plant। Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self-pollination। Pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। आप गौर से देखो, यहाँ पर आपका स्टेमेन है और यहाँ पर स्टिग्मा है। जो पोलन जो है उसी फ्लावर में जा रहा है यार, कि अलग में जा रहा है। आप अगर बात करो, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे किस चीज का, हम लोग बात यहाँ पर किए थे स्टार्टिंग में कि भाई रिक्वायरमेंट होता है 2 का। बुल्स जो है वो काफ्स सिंगली नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमेन टू द स्टिग्मा। इट इज ट्रांसफर्ड टू पोलन ऑक्यूज द सेम फ्लावर। दोनों सेम में कर रहा है, राइट, इन सेम फ्लावर।
इट इज रेफर टू एज सेल्फ पोलिनेशन। एक ही में ट्रांसफर हो रहा है, एक ही फूल में, इसलिए उसको एक ही फ्लावर में, इसलिए बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्कर से हाईलाइट कर लीजिएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड इट इज पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। कभी कभी पोलन ना एक से अदर में होता है, राइट। इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। अब एग्जाम में आ गया कि भाई सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या, आप लिख लोगे। वन फ्लावर में होता है तो सेल्फ, और बाकी में क्रॉस। It is known as cross pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water or animals. अब तो भाई सेल्फ को समझ लिए कैसे होता है, अपने ही में चला गया। लेकिन क्रॉस मतलब एक फ्लावर से अदर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हवा से जाता है या वाटर से जाता है या फिर एनिमल जाता है। अब देखो, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. For this, a tube grow out of the pollen grains and travel through the style to reach the ovary. इस तरह ओवरी में पहुंच गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का अर्थ है कि सपोज कि आप मैन में देखोगे ना, तो स्पर्म एंड का मिलना, ओवरी का मिलना, तो बनता है जाइगोट। So after fertilization, the zygote divided several times to form an embryo within the ovule. The ovule develop a tough coat and is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Meanwhile, the petal, sepal, stamen, style, and stigma may shrivel and fall off. Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant. The seed contains the future plant or embryo which develop into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. इसको क्या बोलते हैं, germination। देखिए यहाँ आप यदि इस फिगर को देखिएगा, फिगर 8.8 गहराई से एनसीईआरटी में, राइट, तो आपको मिलेगा पोलन ग्रेन्स एकदम ऊपर में, स्टिग्मा दिख रहा है, मेल जर्म सेल दिख रहा है, पोलन ट्यूब दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है, फीमेल जर्म सेल दिख रहा है। ये डायग्राम को आप याद कर लो भाई, ठीक है। और जो मैंने डिस्क्राइब किया, सेल्फ और क्रॉस, क्लियर। और मैंने यहाँ पर जर्मिनेशन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप कोटलेडन है, फूड स्टोर है, यहाँ पर प्लुमल है, फ्यूचर रूट है, रेडिकल है, रेडिकल आपका रूट है। यहाँ पर देखिए कैसे करके डिवाइड करता है, चना चना दिख रहा है मेरे को, जर्मिनेशन, राइट। तो ये तो हो गया भाई पौधों में, मतलब फूल वगैरह में। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। भाई ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या, इसके बारे आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। सेक्सुअल मोड, जब कोई भी यूं कहिए तो लोग जब बड़े होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, टीन एज आते हैं धीरे धीरे, तो उनमें धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होता है। और धीरे धीरे क्या क्या बदलाव होता है आप लोग जान रहे हैं। आई होप कि आप लोग जान रहे हैं कि बदलाव क्या होता है। और धीरे धीरे डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ कि गर्ल्स में एस्ट्रोजन और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आते हैं। और जो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। जब यहाँ पर आप देखोगे एक लाइन में, दैट ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, द रिसोर्स ऑफ द बॉडी एंड मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. समझिए कि ये puberty की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में इसी को बोलते हैं टीनेज। मैं कहता हूं अक्सर, एक मेरा वीडियो भी है, 13 to 25 कैरियर बनाने का समय है, राइट। उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैटिंग देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय अदर इंडिविजुअल, राइट। अब इसमें कि आप यूं कहें तो ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल्स नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट।
such as the penis when it is capable of becoming erect in mammal such as human. The baby is carried in the mother's body for a long period. लॉन्ग पीरियड मतलब वहां पर क्या है कि आप जानते हो कि कभी भी कोई भी यूं कहें तो 9 मंथ्स लगते हैं कोई भी बेबीज को मतलब ग्रो करने में, राइट, इनसाइड द मदर्स, यू नो दैट, एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर. अब यहाँ पर दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आप लोग इस डायग्राम को गहराई से देखिएगा, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का भी देखिएगा. मैं पहले बता चुका हूँ शॉर्ट में कि भाई आप लोग जान रहे हो, अंडरलाइन कर लेना. इससे निकलता है मेल से टेस्टोस्टेरोन, उससे निकलता है एस्ट्रोजन. एवरीथिंग इज गिवन है यार, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है. आगे बढ़िए. यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उसमें हजारों, मतलब यूं कहिए तो थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं. थाउजेंड, मैं पढ़ा था उस वक्त 4,000, जब मेडिकल की पढ़ाई में कर रहा था, 4,000 होते हैं. जो कि जब वो मतलब जब शुरू होता है एक साइकिल उनका, ठीक है, साइकिल होता है एक, तो उस वक्त मैं क्या देखता हूँ ना कि उस वक्त जस्ट जब साइकिल उनका शुरू होता है तो 400 से ले करके मतलब सॉरी 4,000 रहता है उसमें बर्थ के टाइम में, और लास्ट बढ़ता है मात्र कितना, मात्र बचता है आपका 400. और वही 400 जो है ना, वही 400 जो है ना, वही 400 जो बचते हैं वो मतलब एवरी मंथ जो है, अगर ये यूं कहिए कि जब एक गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है तो उसमें 4,000 लगभग एग होते हैं, थाउजेंड्स, 4,000. और जब उनमें प्यूबर्टी आती है तब वो जो हैं स्टार्ट करते हैं मैच्योरिंग. 1 egg इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई 1 ऑफ द ओवरीज. अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो 1 egg आउटसाइड होते जाता है. यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि भाई इसमें आप देखिए, हम पूछते हैं कि कोई भी मतलब कब तक कोई, यूं कहिए तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है. 400 एक्स टोटल, वो मतलब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो, यहाँ देखिए दिया हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. एक दिन रुकता है since the ovary release 1 egg every month. The uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining across thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer, so that lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This takes place roughly when month and is known as menstruation. Menstruation is usually last for about 2 or 8 days. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया यार, खुद पढ़ लेना रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं, इसको अंडरलाइन कर करके देख लेना. इसमें क्या क्या बताया गया होगा. इसमें बताया गया होगा एड्स के बारे में, HIV, हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ. यहाँ पर बताया गया होगा आपका कॉपर टी के बारे में, कुछ ड्रग्स के बारे में, ठीक है. आप लोग इसको खुद से स्टडी कर लेना. बस यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जानने की कि इसमें जो सेक्सुअल में 2 होते हैं, 2, राइट. और उसके बाद इससे आगे बढ़ने की बात क्या है, जब हम आते हैं कि ये सेक्सुअल होता कैसे, आप जानते हैं अच्छी तरह कि कैसे कैसे करके मतलब उनके हार्मोन्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. उसके बाद आप ये भी जान रहे हो कि कोई भी गर्ल चाइल्ड अगर रहती है तो उसमें 1,000 ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन जब वो लोग प्यूबर्टी में आते हैं तो उनमें सिर्फ 400 बचते हैं. और स्लोली ग्रेजुअली आफ्टर ईच एंड एवरी मंथ, है ना, अगर उनको यूँ कहिए तो अगर वो एग जो है वो रिलीज
कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया गया है और लास्ट में उसका बताया गया है आपको क्या, लास्ट में उसको बताया गया है हमारे बुक में कि भाई बताया गया है कि कैसे करके ये हेल्थ होता है, इसको हम लोग कैसे करके ठीक रखें। तो यहाँ पर दिया गया है कि बहुत सारी चीज़ हैं। क्लास 9th में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अब यहाँ दिया हुआ है द सेक्सुअल एक्ट्स ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी दिया हुआ है, प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट her health will be adversely affected. Therefore, many ways has been devised to avoid pregnancy. मतलब कोई अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट यहाँ पर हैं चीज़ें। आप उसको खुद से गहराई से पढ़िए और उससे मार्कर से मार्क करते रहिए, मार्कर से मार्क करते रहिए। जितने भी यहाँ पर कोई व्हाट यू हैव लर्नड है उसको देखिए, क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज जो है कीजिए। एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को करने के लिए एस्ट्रांत की बुक को चुनिए, उसमें इनका आंसर दिया हुआ होगा। कुछ नए हुए चीज़ को एस्ट्रांत की बुक से पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चन को एग्जाम के बुक से पढ़िए एस्ट्रांत के। आप देखिएगा बायोलॉजी जो सिंपल होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का और पढ़ते रहने का, बायोलॉजी में डायग्राम जरूर देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।